Hi, welcome to the next set in the daily LRDA practice series. You already know the drill. First pause this video, try the set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's start solving this set. So, what does this say? 7 friends, Ria, Ron, Bob, Harry, Hermione, Cindy and Princey bought at least one chalk, at least one crayon and at least one pencil. So, minimum इन्होंने define कर दिया कि chalk, crayon and pencil, these are the 3 types of articles and we should have at least one of each. Now, the cost of one chalk, one crayon and one pencil is 2, 3 and 1 respectively. Now, let's start making a table. So, we have 3 different types of articles. First one is chalk. The second one is crayon. And the third one is pencil. Now, it says we should have at least one of each. Now, we should look out for whether we have a maximum condition on any of these articles. So as we proceed in this, it says the difference between amounts spent by Ron and Harry, Ria and Princey, Hermione and Cindy was equal. So this would come later on. None of them bought more than 2 pieces of any item. So that is exactly what I was looking for. इसने क्या करा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ने, इसने मैक्सिमम आपका जो लिमिट था वो पॉसिबली सेट कर दिया. नाउ मिनिमम आपका हर एक आर्टिकल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए एंड हर आर्टिकल का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वी कैन ओनली टेक 2. नाउ लेट्स मेक ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द मिनिमम टू मैक्सिमम केसेस फॉर ईच ऑफ दीज articles, right? So let's write down the cost first, 2, 3 and 1. Now different possibilities बनाते हैं. सबसे पहले मिनिमम सबका क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 1 1. नाउ सपोज मिनिमम वाला केस ना होके अगर सपोज किसी एक आर्टिकल का आपने 2 ले लिया, सो 2 जगह 1 रख के एक जगह हम 2 रखते हैं. तो व्हाट आर द डिफरेंट केसेस वी कैन मेक. सपोज दिस इज 1 1, वी कैन मेक इट 2. दिस इज 1 2 एंड दिस इज 1. This is 2 followed by 1 and 1. These are 3 cases. Next, अगर 2 जगह आपका 2 आ जाए तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 रख के डबल 2 इधर, लेट्स से यहाँ 1 रख के डबल 2 इधर, लेट्स से यहाँ पे 1 रख के डबल 2 इधर. एंड द फाइनल पॉसिबिलिटी कि तीनों जगह हम मैक्सिमम आर्टिकल्स ले लें, दैट इज 2 2 एंड 2 ईच. नाउ व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट. सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. बिकॉज स्पेसिफिकली मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट में समझ में आया डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंड बाय रॉन एंड हैरी, रिया एंड प्रिंसी, हर्माइनी एंड सिंडी. सो वी डेफिनेटली नीड द टोटल कॉस्ट. सो हर एक केस का पहले टोटल निकाल लेते हैं. सो 2 into 1, 3 into 1, 1 into 1. सो दिस इज सिंपली 1 plus 2 plus 3, दैट इज 6. नेक्स्ट 2 into 1 2, 3 into 1 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 gives us 7. Next 2, this is 6, so 8, 8 plus 1 is 9. Next 2 to 4, 4 plus 3 7, 7 plus 1 is 8. Till now we have all the different values. Then 2 into 1 2, 2 3 6, so 6 plus 2 8, 8 plus 2 is 10. 2 into 2 4, 4 plus 3 7, 7 plus 2 is 9. So this is the value which is getting repeated first, right? 9. Next 2 into 2 4, 2 into 3 6, so 6 plus 4 is 10 and 10 plus 1 becomes 11, a different value. 2 into 2 4, 2 into 3 6, so 6 plus 4 is 10, 10 plus 2 is 12. Now we have these values 6 7 8 9 is getting repeated right down, so 9 is 2 times followed by 10 11 and 12. Now let's read further all the statements. Only Hermione bought the maximum number of items. So we know from this particular case that Hermione has to be this, who is spending 12. So this is Hermione. Now only Hermione bought the maximum number of items while Harry bought the minimum number of items. So minimum number of items क्या है आपका यहाँ पे 6 है. So this has to be Harry. Right. So 2 लोग का आपका फिक्स हो गया, Harry and Hermione. Now this statement is done. Ria bought 2 chalks and Princey bought 2 pencils. So there are too many cases for this. Ron did not buy 2 chalks. Again, this can be a lot of cases. The total amount spent by each friend is distinct. Now this is very important. If we notice, हमारे पास total 7 friends थे and different possibilities अगर हमने count करी तो total कितनी possibilities थी, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 possibilities, जिसमें कि we know कि 9 is getting repeated. Now this statement says the total amount spent by each friend is distinct.
तो हर एक फ्रेंड के पास एक डिस्टिंक्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर आप 9, देखो 9 तो आप रिपीट कर नहीं सकते हो, तो 9 को अगर मैं एक बार लूँ, सो दैट मीन्स कि बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके किसी ना किसी फ्रेंड को बिलोंग कर रहा होगा, बिकॉज अ टोटल ऑफ 8 वैल्यूज आते हैं, 9 को हम एक बार काउंट करेंगे, राइट। सो अ टोटल ऑफ 7 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैव टू बी मेंशन्ड फॉर ईच ऑफ दीज फ्रेंड्स, जिसमें से 9 आपका एग्जैक्टली एक बार ही आएगा। किस फ्रेंड के लिए आएगा वी डोंट नो फॉर नाउ, बट 9 को एक बार लेके बाकी हर वैल्यू को भी एक एक बार लेना आपको पड़ेगा। सो हर एक कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन फ्रेंड एक्सेप्ट फॉर दिस 9, जिसमें 9 में से कोई एक ही आपका कॉम्बिनेशन किसी एक फ्रेंड को बिलोंग कर रहा होगा। आई होप दिस इज क्लियर। Now this statement is also done. Now this next statement, Bob spent 9 in total. So 9 की ही possibility थी. So either this is Bob or let's say this is Bob. So Bob के भी हमें पास possibility है. Now this statement is also done. Now let's go back to our first condition, first statement. This says difference between amount spent by Ron and Harry, Rhea and Princey, Hermione and Cindy was equal. Now Harry we already know. Harry का कितना है आपका 6. Now this difference between these two sets of people has to be equal. So क्या करते हैं हम, केसेस बना के स्टार्ट करते हैं चेक करना। जैसे कि सपोज आई से दैट डिफरेंस ही इज टॉकिंग अबाउट इज लेट्स से 1, ठीक है। नाउ हैरी एंड रॉन के बीच में लेट्स से इफ दिस डिफरेंस इज 1, बिकॉज हैरी हैज टू बी 6, दैट मीन्स रॉन वुड बी 7, राइट। तभी आपका 1 का डिफरेंस आएगा। नाउ यही 1 का डिफरेंस रिया एंड प्रिंसी में भी होगा। नाउ रिया एंड प्रिंसी की अगर हम पॉसिबिलिटीज देखें, 6 एंड 7 तो आपका हैरी एंड रॉन से कवर्ड हो जाएगा। 9 आपका बॉब के पास है। तो अगर रिया एंड प्रिंसी का 1 का डिफरेंस आना है तो 8 नहीं हो सकता किसी का, बिकॉज 8 के साथ फिर आपका 9 आना पड़ेगा, बट 9 हैज़ टू बी ऑक्यूपाइड बाय बॉब। तो 8 और 9 नहीं हो सकता, 9 और 10 नहीं हो सकता, बिकॉज अगेन 9 बॉब के पास है। दैट मीन्स ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट विल बी व्हाट 10 एंड 11। तो इसमें से एक पर्सन का, रिया एंड प्रिंसी में से किसी भी ऑर्डर में एक पर्सन का 10 होना पड़ेगा, दूसरे पर्सन का 11 होना पड़ेगा। लेट से अभी तक यहाँ तक तो ठीक है, बट इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हो हरमाइनी एंड सिंडी, तो हरमाइनी एंड सिंडी का भी 1 का डिफरेंस होना चाहिए, बट हरमाइनी का तो 12 है, तो सिंडी का दैट मीन्स अगर 1 का डिफरेंस बनाना है तो उसको भी तो 11 होना पड़ेगा। बट अभी जस्ट हमने बोला कि अगर आपका रिया एंड प्रिंसी में ये चीज़ सेटिस्फाई होना है तो किसी एक का 10 और किसी एक का 11 होना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जा रहा है। दैट मीन्स वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। लेट्स से इफ दैट डिफरेंस इज 2, अगर ये डिफरेंस 2 का होता। नाउ अगेन चेक करते हैं, तो अगर आपका इसमें 6 है तो 2 का डिफरेंस बनने के लिए रॉन हैज़ टू बी 8, राइट। 6 एंड 8 विल बी ऑक्यूपाइड। देन रिया एंड प्रिंसी में फिर आपका डिफरेंस कितने का होना पड़ेगा, 2 का होना पड़ेगा। तो अगर हम चेक करना स्टार्ट करें, 6 एंड 8 तो ऑक्यूपाइड है। नाउ इफ रिया एंड प्रिंसी में से किसी एक का 7 है तो 2 का डिफरेंस बनने के लिए फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज 9 बनना पड़ेगा किसी का, बट 9 हैज़ टू बी ऑक्यूपाइड बाय बॉब। दैट मीन्स 2 का डिफरेंस भी आपका नहीं बन सकता अगर हम 7 से स्टार्ट करें। 8 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फिर 8 और 10 ही आपकी पॉसिबिलिटी बचेगी अगर 2 का डिफरेंस बनना है, राइट। अब 8 एंड 10 के साथ अगर आप डिफरेंस देखोगे, 2 का तो बन गया, बट व्हेन इट कम्स टू हरमाइनी एंड सिंडी, तो हरमाइनी का 12 है तो सिंडी का भी तो 10 होना पड़ेगा, बट 10 तो आपका किसी रिया एंड प्रिंसी में से था। दैट मीन्स अगेन एक कॉन्ट्रडिक्शन है। नाउ 8 और 10 के बाद क्या हम 2 का डिफरेंस बना पाएंगे? 9 हम ले नहीं सकते बिकॉज बॉब के पास है। दैट मीन्स आपको 10 लेना पड़ेगा। नाउ अगर हम 10 लेंगे तो फिर दैट मीन्स किसी न किसी का 12 होना पड़ेगा, बट 12 तो हरमाइनी से ऑक्यूपाइड है। दैट मीन्स 2 का डिफरेंस भी आपका पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट 3 का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस इज मच मोर इजी, बिकॉज 3 का डिफरेंस अगर बनाओगे आप हैरी के साथ, 6 का आपका हैरी का है, दैट मीन्स +3 करके ही तुरंत आपका 9 किसका होना चाहिए था? रॉन का होना चाहिए था, बट 9 तो आपका बॉब का है। दैट मीन्स ये तुरंत से कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। वी डोंट नीड टू चेक फर्दर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे अगर आप आओगे, दैट इज 6 के साथ 4 का डिफरेंस। सो सपोज दिस डिफरेंस इज 4, तो 6 आपका हैरी का हो सकता है, +4 करके 10 आपका रॉन का हो सकता है। नाउ उसके बाद अगर हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे, लेट्स राइट दैट डाउन। 6 हमने हैरी का बोला, 10 का हमने फिर रॉन का बोला।
ना अब अगर आपको 4 का डिफरेंस बनाना है, लेट्स से अगर हम 7 के साथ चेक करें, 7 के साथ फिर आपका डिफरेंस 4 में क्या आएगा, 11 आएगा. सो आउट ऑफ रिया एंड प्रिंसी, one could be 7 and the other could be 11. Let's say this is Riya or Princey, and let's say this is Princey or Riya. Now बचे हुए के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए. सिंडी एंड हरमाइनी का भी आपका डिफरेंस 4 का आना चाहिए. नाउ हरमाइनी का आपका 12 है, दैट मीन्स -4 करके 8 इज ऑलरेडी रिमेनिंग, तो 8 कुड बी सिंडी. So Cindy guys confirm she has 8. राइट. नाउ रिया एंड प्रिंसी का आप डिसाइड कैसे करें कि कौन सा है, तो उसके लिए आपका एक ही स्टेटमेंट बचा हुआ है, दिस इज 4th. नाउ रिया बॉट 2 चॉक्स, तो हम चेक कर लेते हैं रिया का आपका इन आइदर दीज 2 केसेस रिया का 2 चॉक आना चाहिए, बट ये वाला केस हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ चॉक्स आपका 1 आया. दैट मीन्स दिस इज नॉट रिया, दिस इज एक्चुअली प्रिंसी. दैट ऑल्सो मीन्स दिस इज गोइंग टू बी रिया. राइट. सो ये डिसाइड हो गया अपना. नेक्स्ट, प्रिंसी बॉट 2 पेंसिल्स. प्रिंसी का ऑटोमेटिकली हमने डिसाइड कर ही लिया है, प्रिंसी हैज़ टू हैव 2 पेंसिल्स. नाउ वेयर इज प्रिंसी, हरमाइनी एंड नॉट सिंडी, सॉरी सिंडी. सो सिंडी, प्रिंसी. So Princey is obviously yes. Princey is already confirmed. Princey has 2 pencils. They shouldn't have given that. It is redundant. Next, Ron did not buy 2 chalks. Now what about Ron? Ron did not buy 2 chalks. We already know Ron did not buy 2 chalks. So a lot of these statements are redundant. We didn't necessarily have to have them. We can easily figure out without these statements also. Now what about Bob? There is no information given about Bob. So Bob's case is not uniquely determined. We cannot say for sure what is that combination. Bob has 9 total, but what is that combination for Bob, we cannot say for sure. Right. So this is all we can do to this set. Now using these conditions, using these information, we can actually go ahead and solve all the problems. Now let's go to the first problem. This says what was the difference between the amount spent by Ron and Princey. So Ron was 10, Princey was 7, so the required difference is 3. Next, for how many friends the total amount spent by them can be uniquely determined, right? So out of 7 friends, we cannot simply say for Bob, but for all the, this is asking the total amount spent. So even for Bob, we can say the total amount spent has to be 9. So for all the 7 friends, we have uniquely determined the total amount spent by each of the friend. But when it comes to Bob, we cannot say what is that distribution, but the total amount is guaranteed and that has to be 9. Now next question, amount spent by Riya was, so Riya's total amount spent is 11. This is again easy. Who spent the third lowest among the 7 friends? So third lowest would be, the lowest would be 6, 7 and third lowest would be 8. So 8 is actually being spent by Cindy. So the answer to the last problem becomes Cindy. Now this is a fairly straightforward set. We just have to make these combination and then our task becomes easy. I hope you have understood this set. Thank you.